Big hello and namaste from Singapore. I am Hema Dadwal. I'm passionate about wellness, holistic lifestyle and soil health. और आज की स्पेशल गेस्ट हैं दीपाली कोडवा मुंबई से कर रही हैं जीरो केमिकल फार्मिंग एंड शी इज वर्किंग टुवर्ड्स हेल्दी सॉइल एंड लीडिंग हेल्दी लाइफ. लेट्स डिस्कवर हर जर्नी फ्रॉम सीए टू being a lady farmer. She is a founder of One of the Forest. Today's guest is Dipali Kodwa. Dipali, please आप send a request so that I can add you in. और आज की conversation बिल्कुल मिस मत करिएगा because if you are somebody who love nature, who want to do something and it will be a beautiful learning. Yes, I can see her. How are you? Good. How are you? I'm absolutely fine. I was just introducing all the, getting them prep what we are going to talk about. So I was telling that Dipali is running, she's a founder of One Other Forest. It's a permaculture kind of a farm, food forest kind of a farm, where she's also heading and doing homestay. And today we'll be, discovering and exploring the whole journey of being how you started from being a CA and still a CA, but then again now you are also a full-time permaculture natural farmer also. Well, I always say that permaculture farming or natural farming, organic farming, whatever I say, no chemical farming means not a trace of chemical, and then you are doing farming. So we'll be putting emphasis on that. So welcome to my space, Dipali. I'm very excited to talk to you. Same here, Hema. Thank you for encouraging, people like us who have chosen a different path. Because being a chartered accountant, I was working in corporate, but I had a good pay. I had a life that I wanted, but somewhere deep down, I was not feeling like I was feeling that I'm not doing something like which is really making me happy. And basically, so things happened, and that's how I moved into it. And I think you're doing a wonderful job to, like whatever I feel, whatever I am experiencing right now, you are, really, and I want people to experience this happiness when you go into farming. That's my aim. Yes, Dipali. Thank you so much for encouraging many people and to me also. But you are already, so let's start our this. We'll discover everything. So एक तरफ मुंबई की फास्ट पेस लाइफ, दूसरी तरफ फार्म की स्लो पेस, serene life. So आखिर why you choose to be farmer? Just in short, if you want to tell us. So so first segment we will start, Dipali, that is Mumbai ki speed या मिट्टी की पीस. Okay, so during COVID, I think COVID के बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी में 180 degree turns आए. We had a lot of ups and downs, but your journey have been straight away you have started farming, during this pace of time. So ऐसा कौन सा पल था या ऐसा कौन सा that moment was there that you thought that yes, अब मुझे I want to be a farmer or I want to do something to do with soil. So बचपन से ही I mean मेरे बचपन में I used to be lot on the in the open. So मेरा नानी का घर गांव में था. तो मेरे समर वेकेशंस में मैं हमेशा पेड़ और पौधे और फार्म्स और उसमें ही खेलते थे हम लोग. तो वो जो that peace which was there, I think slowly as I grew up and as I like when I used to come back to cities, it was a rat race. And slowly it made me a person which was very serious about life, very anxious, very serious, and wondering what will happen next. And I think of course I in 2019 I think we used to love, me and my husband, we both love to go out in the nature. So every 3 months we used to book a farm stay or escape away from the city. And we used to get so much peace when we used to go out of the city. And when we came back, we used to miss the farm and the nature around. So we thought, why not, just take it. And then there were a lot of health issues. Like we were earning, we had money, but there were no proper regular timings for the meal. And it was over the shelf, quick meals, more of eating outside.
And I think we saw that we, as a family, we fell ill often, you know, like the doctor visits was more. Okay. So, and we read that there are a lot of chemicals in the food that you are eating. So we are buying it over the shelf from the local vendors, but we don't know what was going in it. So that's how we said that there must be something more to, you know, what we are currently doing, because this is chaotic. I mean, though we are having everything in life, but it's not making sense, you know. So, and I think in 2019, I happened to do inner engineering with Sadhguru, and as Shambhavi Mahamudra came in my life. And I think from then onwards, things started to change. The Save Soil movement came in my life, and I really began thinking, yeah, because we are all connected to the soil, you know, like how we come from the soil, we go back to the soil. So that made me think, and that made me, you know, really venture into this direction, that there is something more to us than what, you know, we are currently living. Wow. Yeah, even the Pali, let me share my also that even I got, the first figure which like, I want to do something about soil started from here only. I got a very special invite here. It was a close, group invite from Sadhu Guru organization only, Save Soil, some initiative, some 19-year-old young boy was like, यहाँ पे आया हुआ था. तो हम सब उसको ग्रीट करने के लिए और उसकी so the presentation he has shown, that young boy, it really awakened my inner soul kind of कि नहीं हमें फिर मुझे तब से ये realization आया कि I think everybody should be aware of this because ये सबका business है. Soil is everybody's business because we all are eating, we all are having, खाना तो खाना ही है. So soil is everybody's business. So तब से फिर मेरे को आया कि नहीं, I want to do something. So very nice. So I now let's move to the next segment कि लोग कहते हैं कि जो farming है वो सिर्फ खेती है या farming है. But I think every farming, when you are becoming a farmer from the conventional journey, there is some story. So would you like to, my second segment is हर farm के पीछे एक कहानी होती है. So Dipali, would you like to share your that personal story? What was that which triggered you कि अब मुझे farming की तरफ बढ़ना है? I think I was in my office, and I was like sitting in front of the computer, and a lot of things were happening around, I was working hard. I was working 12 hours a day, and I think I was waiting for some kind of appreciation from the management, or like from the office, some kind of a promotion, and that didn't happen. And then I was wondering, like, I am like, there is something in me that is asking to come out, to be seen, to be appreciated, or basically to feel good, like to feel the happiness that sometimes we all need. Everybody, yes. And and then I said that this is like the corporate is not what is really making me happy. And there is something more. As I told, I wanted to see what is it that is inside me, which wants to feel fulfilled, feel complete. And that's how I ventured into. My husband said we should take a farmland, so I think he was the one who led me there, and he took the initiative, and he took a farmland. And once the farmland was there, and then it kind of it brought out something in me which I never experienced in my sitting in my office. The open air and the challenges which come when you are a new farmer. It's completely, different, because when you are in a corporate, you're in a chartered accountant, what are the numbers, and what are the challenges which comes with it. But in farm, it's completely different, and it made me a new person altogether. There were some areas in me which I felt, अरे ये भी मेरे अंदर है, मेरे अंदर ये भी है. तो मतलब वो सब बाहर आने लगा, कि मेरा एक साइड जहाँ पे आई एम प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे पानी है, पानी नहीं है, या तो लेबरर्स नहीं है, या तो मैंने कुछ लगाया और आ नहीं रहा है, तो उसको कैसे टैकल, अरे क्या मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन, जो मैं बिल्कुल नहीं करती थी पहले, अभी मैं ऑब्जर्व करने लगी. पेशेंस, काफी सारा पेशेंस. तो ये सब जब मैंने देखा कि आ रहा है, तो मैंने बोला मेरे को यही करना है. तो मैंने कॉर्पोरेट्स को गुड बाय बोल दिया,
और फिर मैंने बोला देख लेंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, बट मैंने बोला ये भी किधर ना किधर इट विल गिव मी सम इंडिपेंडेंस। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जब भी मैं फार्म में उतरी, और जब मैं साइमल्टेनियसली दोनों देख रही थी। आई यूज्ड टू वर्क मंडे टू फ्राइडे इन माय ऑफिस, एंड सैटरडे संडे आई यूज्ड टू कम टू माय फार्म। बट Okay. वो 2 दिन मेरे लाइफ में, लाइक इट गॉट मी सो मच Joy. involved, yeah, that I Okay. said I want to be here. Wow. So So I got can combined. make out कि ये like आपने खुद को ही discover किया, like knew you, the real you, कहते हैं ना, The अपने real me, yeah. soul को discover किया. And please convey lot of appreciation for your husband कि जिन्होंने आपको encourage किया. अगर ये thought आता है, क्योंकि कई ऐसे families होते हैं कि आता है लेकिन वो फिर family से support ना मिले तो वो दब जाता है. True, But true. then he just please hats off to such kind of people also, and husbands and family members who The family encourage support, such. yeah. Very nice. So okay, so नाउ मिताली, आपने तो फार्मिंग तो करने का सोचा ही, लेकिन आपने सोचा कि मुझे जीरो केमिकल फार्मिंग करनी है, ठीक है? सो जीरो केमिकल मतलब पर्माकल्चर या नेचुरल फार्मिंग करना है, मतलब सबसे ज्यादा लोगों में ये आता है कि ये आपके बस की बात नहीं है, बिकॉज उससे कुछ होता नहीं है. सो ना थर्ड सेगमेंट इज जीरो केमिकल फ्रॉम जीरो केमिकल या जीरो केमिकल कंफ्यूजन. सो बिकॉज अगर हम जैसे बिगिनर्स होते हैं, लाइक व्हेन यू आर जस्ट have no idea about the agriculture and you jump in this field of agriculture, so बहुत सारे confusion होते हैं. तो I want you to put light on that, ठीक है? अगर कोई बिगिनर आज आपके सामने है, तो मुझे फार्मिंग का एफ भी नहीं पता है, लाइक दैट पर्सन डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? और ऐसे कौन से 3 एडवाइस होंगे जिसे आप बोलेंगे कि पहले इनको समझ लो एंड देन जंप ऑन दिस और देन गो फॉर इट? Over to you. Yeah, it's a good question, Hema, and a very important one if you are looking towards farming. Yeah. Because ये मैंने बहुत हार्डशिप्स, मतलब बहुत कठिनाई से सीखा. तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन की जब आप नेचुरल फार्मिंग में जाते हो तो क्या चीजें आपको बेसिकली रखनी पड़ती है, वो है आपके पास पानी कितना है. तो पानी के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है. तो पानी एक मेन है. तो आप जब भी फार्मिंग करना चाहते हो या अपना खुद का नेचुरल फार्म रखना चाहते हो, तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अगर आपके पास पानी है तो आप सब कुछ कर सकते हो. आपको जो चाहिए हो झाड़ लगा सकते हो, जो चाहिए कर सकते हो. तो दूसरा है जमीन. आप जब भी जमीन खरीद रहे हो तो वो जमीन का कैसी है, उसका मतलब आजू बाजू का परिसर कैसे है, या फिर आजू बाजू कोई केमिकल फार्मिंग करता है क्या. बिकॉज आप अगर केमिकल फार्मिंग आप 100% नेचुरल करते हो, पर आजू बाजू अगर केमिकल है तो वो आपको इम्पैक्ट होता है. तो उसके लिए भी आपको थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा कि आप जो जमीन ले रहे हो उसका नेबरहुड कैसे है, आपका जमीन का सॉइल क्वालिटी कैसे है, ये टेस्ट आपको जरूर करना है लेने से पहले. तो ये सब चीजें. और जो तीसरी चीज है वो है आपके पास कितना टाइम और पैसा है. बिकॉज टाइम और पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप सोच रहे हो कि मैं फार्म पे आके शिफ्ट हो जाऊंगी, तो आपके पास मतलब आपको वैसे सोचना पड़ेगा. अगर आप सोच रहे हो कि आप वीकेंड में फार्मिंग करोगे तो आपको उस हिसाब से उसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी. और अगर आप सोच रहे हो मैं महीने में एक बार फार्म में जाने वाली हूँ, तो आपको उस हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी. तो ये 3 चीजें आई थिंक बेसिक है. पानी, जमीन और टाइम और मनी. ये आपके पास, आप कैसे करोगे ये आपको देखना है. और पर दीपाली आजकल ये तो है कि लाइक जैसे अभी मेरे मन में हो या जैसे आपके मन में आया कि मुझे नेचुरल फार्मिंग करनी है, मतलब नो केमिकल, नो इंटरवेंशन ऑफ इवन सिंगल केमिकल, लेकिन आसपास के लोगों को हम नहीं समझा सकते हैं. तो फिर भी इट्स पॉसिबल क्या आपने जो जहाँ लैंड लिया, क्या वहां पे सभी नेचुरल फार्मिंग करते हैं, या आपने उनको इंस्पायर किया, या वो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं? What is? So everybody was doing chemical farming. यहाँ पे natural farming कोई नहीं करता था because they used to feel that it's a failure. Now why it's a failure? Because एक तो land इतने degrade हो गए हैं वहाँ पे जहाँ पे मेरे आसपास, कि अब अगर natural उसको करने जाओ तो उसको time लगेगा. तो वो तो natural है. Because
आपने इतने सालों से वो लैंड पे जुल्म उसको उठाए हैं, इतने उसको केमिकल्स डाले हैं, एब्यूज किया है, हाँ, या इतना हाँ, केमिकल्स के इतना साथ, तो अब्यूज टाइम किया है, लगेगा उसको। या तो वो हम्म, टाइम उसको चाहिए। यू कांट से कि ये मैं इतना मैं गोबर खाद डालूंगी और ये आएगा, वैसा नहीं, उसको हम्म, टाइम लगेगा। तो हम्म, मेरे आसपास लोग मुझे बोलते गए कि मैडम आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो। हम्म, पर मैंने एक ठान लिया था कि अगर मेरे को केमिकल ही करना था तो मैं शहर से बाजारों में से ले क्यों लेती, आई, तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी। तो बिल्कुल, मुझे सच में नेचुरल करना था। और आज अगर आप देखोगे तो मेरे जब भी अभी रिसेंटली मेरा फार्म बहुत हरियाल मतलब ग्रीन लगता है, बल्कि पानी ये साल पानी का थोड़ा शॉर्टेज था, बट हम्म, मेरे झाड़ वर एबल टू सस्टेन बिकॉज ऑफ मल्चिंग और बिकॉज ऑफ वॉट एवर टेक्निक्स आई हैड डन। और ये देख के आई थिंक बाजू के गांव वाले, लाइक बाजू के आस पड़ोस वाले भी अभी मेरे से इंस्पायर हो रहे इंस्पायर हो रहे हैं। तो हैं, वहां वाह, पे वीडीसाइड डालते हैं, लाइक वहां पे ग्रास बहुत आता है, तो लोग इंस्टेड ऑफ कटिंग और चॉप एंड ड्रॉप के बजाय वहां पे वीडीसाइड डाल के उसको मार देते थे। तो हम्म, उन्होंने देखा कि मैं वो नहीं कर रही हूँ, और वो हंस रहे थे, बट मैं बोला कि नहीं चलेगा। और आज ओके, वही लोग मेरे से ब्रश कटर लेके जाते हैं और बोलते हैं मैडम मेरे को भी थोड़ा चॉप एंड ड्रॉप करना है, तो मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये वाह, उनमें धीरे धीरे सही वो आ रहा है। ओके, और मैं भी उनको थोड़ा इंस्पायर कर रही हूँ कि जैसे कि मैं मुंबई, मेरे पास एडवांटेज है कि मैं गांव से शहर आ सकती हूँ। तो हम्म, मैं उनको एनकरेज करती हूँ कि आप भी थोड़ा नेचुरल कुछ भी प्रोड्यूस मुझे बना के दे दो, और वो मैं सिटीज में मेरे लोकेलिटी में मेरे फ्रेंड्स में बेच दूंगी। तो वाह। उस हिसाब से So you are helping them to market, yeah? Because या वो सब उनको नहीं giving आते, them a तो you are market. helping. Yeah. Yes. And I'm telling them that I don't want the chemical. You grow organically and you tell me, I'll come and visit. आपका देखूंगी, अगर अच्छा है तो आपको मार्केट मिलेगा। तो इस हिसाब Okay. से आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस देम, कि गो फॉर। Very nice. This is the biggest service we can do actually, because you are not only empowering them but also providing those people, because जो आसपास की locality community है उनको एक healthy खाना मिलेगा, healthy उनका health सुधरेगा, तो it's a bigger very blessing things you are doing actually, very beautiful. So आगे बढ़ते हैं शिफारी, दिवाली, हम लोग जीरो फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग से जुड़े बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स, या बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो माय फोर्थ सेगमेंट इज सच या मिथ, या सो सबसे पहली जो एक मिथ है जो कि नेचुरल फार्मिंग या जीरो केमिकल फार्मिंग का है कि ये बहुत महंगी होती है. सो व्हाट इज योर ओपिनियन? आई थिंक इट्स अ मिथ। मैं इनिशियली ऑफकोर्स एज आई टोल्ड यू लैंड को अब्यूज किया गया है, तो उसको थोड़ा यू हैव टाइम. टू या गिव इट टाइम एंड लिटिल एफर्ट्स। महंगी नहीं होती है, जैसे कि गाय का गोबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल गाय कोई रखता नहीं है, सो बिकॉज ऑफ विच समटाइम्स जो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो लेके आने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा लगता है। बट इफ यू डेवलप अ इकोसिस्टम, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने 2020 में शुरुआत की थी, और आज आई थिंक अभी मेरे पास मैन्यूर खुद ब खुद बन रहा है वहां पे जगह पे ही। तो मुझे कुछ मतलब कहीं जो बाहर से मेरा हाँ इनपुट पहले था, वो भी धीरे 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 इट इज कमिंग टूवर्ड्स अ वेरी मिनिमल मिनिमल क्वांटिटी। ओके. तो हाँ, एंड एक इकोसिस्टम अगर आप बनाओ तो आई थिंक इट शुड नॉट बी, इट्स अ मिथ दैट इट्स एक्सपेंसिव। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ. जैसे कि मिट्टी का अगर कंपैरिजन अपनी हेल्थ से करें दीपाली, हम लोग ना तो कहें कि अरे हेल्थ को मेंटेन करना बहुत महंगा है. नहीं, लेकिन अगर हम अपनी इम्यूनिटी राइट प्रैक्टिसेस, राइट लाइफस्टाइल, सही कहते हैं ना लाइफस्टाइल से करें, तो एक्चुअली में लाइफ को अपना हेल्दी बना के रखना, बॉडी को हेल्दी बनाना इज एक्चुअली नॉट एट ऑल अ बिग जॉब, राइट? एंड देन यू आर सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम मेडिसिन एंड वो जो हॉस्पिटल बिल्स एंड ऑल दैट. सो मेंटेनेंस एक्चुअली जीरो, तो इट्स एक्चुअली जीरो मेंटेनेंस, बिकॉज कई 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 कहते भी हैं. बट येस, इनिशियली अगर आपने अपनी सॉइल को इतना अब्यूज किया है तो आपको थोड़ा उसको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको सप्लीमेंट्स, नरिशमेंट, नेचुरल नरिशमेंट नेचुरल देना पड़ेगा. और एक बार आपका सॉइल वो तगड़ा हो जाता है तो देन इट कैन सर्वाइव. सो यू या आर ब्रेकिंग दैट मिथ. या चीयर्स टू दैट. थैंक यू। ओके, द सेकेंड वन इज इसे तो सिर्फ गांव वाले करते हैं. तो खैर इस मिथ को तो आपने बहुत अच्छे से तोड़ा, बिकॉज यू आर ऑल्सो फ्रॉम, yeah, from metro city, from Bombay, and was a CEO, CA.
चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप सीधा फार्मिंग में कूदे और एंड यू आर डूइंग इट वेरी परफेक्टली, बट So प्लीज आई because वांट it टू is नो योर a टेक. very essential thing, जो I think we are forgetting where we came from, and it's the basis of life basically. घूम यस फिर के आप यस, वहां पे ही आने वाले हो. बिल्कुल. और ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ मेरे को लगता है सबको तोड़ना चाहिए कि ये सिर्फ एक गांव वालों का काम है. नो, खाना जो है, खाने की क्वालिटी, जितना एजुकेटेड लोग, जितने हाईली विजडम वाले लोग जो कहते हैं ना, जो हमारी पुरानी विजडम के साथ काम करेंगे और उसको लेके आने वाले लोग करेंगे और मॉडर्न टेक्निक के साथ करेंगे, उतना ही हमारी सोसाइटी के लिए, उतना ही हमारे हमारे कंट्री के लिए अच्छा होगा. राइट. सो आई थिंक Right. इट्स नॉट इट ओनली सिर्फ एक अनपढ़ या गांव वालों का काम नहीं है, ये हम सभी का काम है और उसमें कोई भी जा सकता है. और एक और मिथ है शिवानी, दीपाली, दे से दैट हम जो खेती बाड़ी है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है. इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेहनत तो है, बट मेहनत किधर नहीं है. मेहनत आप ऑफिस में भी 12 घंटा डाल रहे हो. यस. अगर आपको कुछ लाइफ में चाहिए तो मेहनत तो होती ही है, बट आई थिंक उसका जब भी फल आता है तो आपको मतलब आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग है. जब भी आप देखते हो कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं मेहनत करती हूँ फार्म में, मैं धूप में, अभी तो इतना ज्यादा गर्म है, फिर भी आई स्टे इन माई फार्म एंड आई सुपरवाइज और वट एवर आई डू इट with them as well. तो जब मैं देखती हूँ कि कोई चिड़िया, जैसे कि 5 साल पहले वहां पे एक भी झाड़ नहीं था और आज वहां पे लगभग मैंने अराउंड 1000 झाड़ लगाए हैं. तो उसमें जब चिड़िया घोंसला बनाती है तो इट इज लाइक ओ वाओ, somebody इट्स आई एम हेल्पिंग समवन. सो मेहनत तो है, बट मेहनत हर फील्ड में है. हर फील्ड में, बिल्कुल. आई टोटली एग्री, बिकॉज कौन सी फील्ड में मेहनत नहीं है? आप जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लाइफ में और वहां पे जो आपका मेंटल जो कहते हैं ना इन्वॉल्वमेंट और डिप्रेशन और ये सब चीजों से कनेक्शन भी आता है उससे. ये चीज अगर आप नेचर से जुड़ के फार्मिंग में करेंगे, उसमें आपका थोड़ा सा ये कहते हैं कि बॉडीली मेहनत हो सकता है, फिजिकल, बट उसमें आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो किसी भी प्रमोशन से नहीं मिलेगी जो कॉर्पोरेट लाइफ की है ना. दैट वो छोटे छोटे मोमेंट्स के, अरे वो न्यू एक भिंडी निकल के आ गई, एक बैंगन निकल के आ गया, या बीट रूट निकल के आ गया, या बर्ड जैसे आप कह रहे हैं वहां बटरफ्लाई नजर आ गई, ऐसी चीजें जो नहीं दिखती थी, वो आपके कहते हैं ना आपकी सोल को खुश करती है ना. Right. All your diseases and everything is related to your mind and your gut. So अगर आप इन दोनों को अगर बैलेंस में रखते हो, और which is possible with nature, so I think you don't need medicines, like you can live a good life. Yes, totally agree. एक और मिथ है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है कि केमिकल छोड़ने से फसल नहीं आती है, प्रोडक्शन नहीं होता है. इस मिथ के बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज नाउ यू हैव अ अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो. नो, इट्स अ मिथ. केमिकल मैंने बिल्कुल यूज ही नहीं करती हूँ. और मैंने ये साल जो मेरे खेत से जो आए केसर के आम, जो मैंने फैमिली में बांटा या मैंने खुद के लिए, तो उनका जो टेस्ट था वो आई थिंक मार्केट में किधर भी नहीं मिलेगा. तो वो इतना टेस्टी था कि बाजार से जो हम आम लेते हैं वो वो इतना टेस्टी नहीं होता है. बट आई थिंक it's a myth, so it's a myth. Totally, I totally agree, because अगर कई लोग हैं, इसीलिए हम कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी आसपास की कम्युनिटी में हमें नेचुरल फार्मर्स मिलने चाहिए अपने. तभी मेरा मेन दीपाली इंटेंशन इज दिस ऑल्सो, कि लोगों को, जो कस्टमर्स हैं, उनको थोड़ा अवेयर कराएं कि अपने फार्मर्स को जानो, कनेक्ट करो उनके साथ. जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर्स वगैरह होते थे पहले, तो अगर आप अपना फैमिली फार्मर बना लोगे तो आपको एक्चुअली डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी आर व्हाट वी ईट. तो सो लाइक सो अगर आप मतलब if you are doing chemical farming and you are promoting, you are supporting those people and you are buying from them, so I think it is a blessing for the community itself, right? और उसका जो टेस्ट है, हर चीज का, जो चीज नेचुरल उगी है उसमें कोई केमिकल नहीं है, उसका टेस्ट. और जो चीजें, इवन मैं सिंगापुर में हूँ, यहाँ पे आई एम श्योर बहुत चेकलिस्ट होते हैं, लेकिन दे आर हाइब्रिड, दे आर सो उनका टेस्ट वो टेस्ट नहीं है जो अमरूद में, एक अमरूद का टेस्ट आना चाहिए, जो मैंगो में मैंगो का आना चाहिए, या फिर इसलिए भी बिकॉज वो बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस
कवर करके आते करके। हैं, तो उसमें काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं कि वो प्रिजर्व रहे, सो वो जो नेचुरल चीज तभी आती है जब आसपास के फार्मर्स को आप इनकरेज करें, उनको जाने आप, एंड सो देन इट मेक सेंस, एंड देन यू कैन से दैट केमिकल फार्मिंग में भी उतना ही प्रोडक्शन होता है एक्चुअली, एंड बिकॉज वो वेस्ट नहीं होगा, जो इतनी मेहनत से उगाया हुआ है वो वेस्ट नहीं होगा, तो उसमें प्रोडक्शन आपने देखा है कि आपकी बड़ी है धीरे धीरे या बिल्कुल कम हुई है? काफी बड़ी है। सो इनिशियली फर्स्ट 1-2 years में मेरे को पेस्ट अटैक बहुत होते थे। जैसे मैंने तुअर लगाई थी, तो जो तुअर के पॉड्स है उसमें एक दाना मिलता था, बाकी के 4 दाने खराब होते थे। तो मैंने इंटरक्रॉपिंग करना चालू किया कि जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स है, जैसे कि लेडी बग्स एंड ऑल, सो मैरीगोल्ड प्लांट करना, सिंपल जैसे कि हल्दी लगाना। तो ये सब चीजें जब मैं करने लगी, तो ये साल मेरा तुअर का जो उस पे एक भी पेस्ट अटैक नहीं हुआ। और मैंने देखा है कि प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता है। पर केमिकल फार्मिंग में आप क्या करते हो, आप वो यूरिया वगैरह जो है वो आप जमीन में डालते हो, तो जमीन में यूरिया जो आपके गुड माइक्रोब्स और बैड माइक्रोब्स दोनों को मार देता है, और उसका वो जो खाद बना के वो अपने क्रॉप्स को देता है, तो इसलिए आपको फटाफट प्रोडक्शन मिलता है। बट लॉन्ग रन में आपने अपने खेत में माइक्रोब्स को खत्म कर दिया है, सो इट बिकम्स अ चैलेंज। बट नेचुरल फार्मिंग ऐसे नहीं है, आप इनफैक्ट आपके माइक्रोब्स को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे वो माइक्रोब्स बढ़ते हैं। यू आर फीडिंग योर सॉइल विद अ वेरी गुड माइक्रोब, एंड इवन जो डोमेन होते हैं वो भी जाग जाते हैं, एंड देन दे आल्सो स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज हमारे रियल सोल्जर्स तो वही हैं। वैसे तो अर्थवॉर्म भी हैं, और फिर अर्थवॉर्म भी आपको दिख रहा होगा कि आप बढ़ रहे हैं आपकी लैंड पे। यस, यस। सो या आई थिंक वट एवर यू हैव आंसर्ड ना, आई थिंक दीपाली उसमें यही है मेन जो चीज टेक अवे, आई थिंक कि जब हम धीरे धीरे काम करते हैं तो केमिकल का जब असर खत्म होता है सॉइल से, तो सॉइल में प्रोडक्शन अपने आप बढ़ता है। एंड देन मल्टी फार्मिंग, आपने कहा ना मल्टी लेयर फार्मिंग, तो मल्टी लेयर फार्मिंग एक्चुअली हम जब इकोसिस्टम, बिकॉज हम जब इकोसिस्टम बनाते हैं तो वो जो कहते हैं ना फ्रेंडली इंसेक्ट्स एंड नॉन फ्रेंडली, उन दोनों का एक बैलेंस बन जाता है, तो देन देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज देन दे आर ऑल्सो हैविंग देयर फीड, बिकॉज वो भी जरूरत है। कहते हैं ना एक छोटे से छोटे इंसेक्ट्स की भी हमें जरूरत है, उनका कोई ना कोई रोल है, तभी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दिस और नेचर में कोई वीआईपी नहीं होता है। नेचर में सब, इवन वी आर नॉट वीआईपी, एवरीबडी इज द सेम। एंड आई थिंक समवेयर देयर इज अ फूड वेब, जैसे हमको बचपन में पढ़ाया जाता था कि फूड वेब है, तो कोई इंसेक्ट बुरा या ये नहीं होता है। जस्ट दैट अगर कोई अपने को नुकसान करे तो उसको खाने वाला वहां पे बुलाओ। जैसे मेरे खेत में मैंने देखा कि मैंने स्वीट पोटैटोज लगाए थे, तो स्वीट पोटैटोज आर वेरी एक्साइटेड कि स्वीट पोटैटो आने वाला है। एंड जब हम उनको, वो अंडरग्राउंड होता है, तो जब हम उनको डिग करके देखा तो वो कुछ था ही नहीं, स्वीट पोटैटो पूरा चूहा खा गया था। तो फिर मैंने क्या किया, तो मेरे को पता है मेरे इसमें आउल्स आते हैं मेरे फार्म में, तो मैंने वो स्वीट पोटैटो के अराउंड इस साल मैंने बेंचेस लगाए, सो दैट द आउल कैन पर्च एंड सिट एंड हैव इट्स मील। तो ये साल मैं देखा कि मेरे को स्वीट पोटैटो मिले, एक्चुअली द आउल्स, एक आउल दिन में 4-5 चूहे खा लेता है। तो ऐसे जब भी कोई इंसेक्ट बुरा या अच्छा नहीं होता, जब उनको एक प्रीडेटर आता है तो उनका पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता है। सो दैट बैलेंस नीड्स टू कम इन योर फार्म। एब्सोल्युटली, आई फील जब नेचर टेक ओवर करता है, बिकॉज हम एक इकोसिस्टम बना दें, तो नेचर जब टेक ओवर करता है तो नेचर नोज व्हाट इज good for each creature in the earth, right? और सबका प्रे और सबका प्रीडेटर रहते हैं, खाली हम इतना डिस्ट्रॉय किया है सब चीज को कि वो आते नहीं है हमारे खेत में। एग्जैक्टली, हमने उनको भगा दिया है, भगा दिया। या सो दीपाली, नाउ लेट्स मूव टू दिस वन। सी नॉर्मली लोग जो हैं वीकेंड्स में मॉल जाते हैं, लेकिन आप 80 किलोमीटर ड्राइव करके अपने फार्म में जाते हो, तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से, अभी भी अभी आई थिंक 4.5 years हो गए हैं आपको, so ये इंस्पिरेशन, सो ये इंस्पिरेशन क्या है, मतलब व्हाट इज इट अ थेरेपी, मेडिटेशन और हैप्पीनेस, क्या है आपके लिए फार्मिंग? मैं भी वैसे ही थी, मतलब मोस्ट ऑफ द सिटी गोवर्स की तरह मैं भी मॉल जाती थी इनिशियली, बट मैंने देखा कि ये खत्म ही नहीं होता है। मतलब आज मैं मॉल गई तो मेरे को 1-2 साल मॉल अच्छा लगता है, फिर मुझे 2-3 साल
फ्रेंड्स के साथ बाहर रेस्टोरेंट जाना अच्छा लगता है, फिर मेरे को शॉपिंग अच्छा लग रहा है। तो हम्म मतलब क्या हो रहा है कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, और मतलब अगर मैं शॉपिंग जाती हूँ तो मैं शॉपिंग करती हूँ, 5-6 हजार खर्चा करती हूँ, फिर वापस थोड़े दिनों बाद मेरे को वापस वो फील गुड के लिए वापस शॉपिंग की याद आती है कि अरे चलो शॉपिंग करते हैं। तो ओके ये मैंने देखा कि ये जो हैप्पीनेस इज नॉट लास्टिंग, इट डजंट लास्ट विद मी। बट जब मैंने फार्मिंग में गई तो मैंने देखा कि ये इट स्टिक्स विद यू, वो जो सेटिस्फैक्शन है फिर आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि अरे वाह, मतलब अंदर से जो यू गेट दैट काइंड ऑफ फुलफिलमेंट, तो आपको लगता है कि you don't need anything else, you यू can डोंट just sit here and be नीड happy, like that. So I think वो जब मेरे को वो किक मिला फार्मिंग से, तो मैंने मतलब ये जो आर्टिफिशियल चीजों के पीछे भागना, आई थिंक मेरा बंद हो गया वैसे। तो यही ब्यूटिफुल इंस्पिरेशन है कि मुझे, आई मीन फार्म से ज्यादा मुझे फार्म से बहुत मिल रहा है, which is not physical वाओ but maybe something in my mind I'm getting a lot of happiness. तो उसके पीछे मैं भाग रही हूँ, but I think I'm not मैं भाग भी नहीं रही हूँ, I'm like happy, genuinely happy with what I'm doing. Wow, this is really truly very inspiring. I'm sure people who are listening, I can totally feel you. I can totally feel you because जो नेचर के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं ना, तो डेफिनेटली नेचर आपको इतना देता है, इतना भर देता है that you don't need anything else, right? ये Right, मैंने right. हमेशा महसूस भी किया है खुद भी. Very inspiring. So, जरा सोचिए, ना ट्रैफिक ना नोटिफिकेशन, सिर्फ ताजी हवा, पक्षियों की आवाज और मीठी खुशबू. सो हमारा थर्ड 6th सेगमेंट है फार्म स्टे टू फॉर रीसेट. सो आपका जो दीपाली, ये जो है आपका वना द फॉरेस्ट फार्म, या यू आर ऑल्सो डूइंग दिस होम स्टेज, राइट? Yeah. सो आप होम स्टे का एक्सपीरियंस, अगर आप किसी को इनवाइट करें, लाइक टुमारो इफ आई कम टू योर दिस फार्म स्टे, सो क्या मतलब व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, फ्रॉम लाइक, yeah, so it's like more like a agro-tourism, you are doing that, yeah? Not agro-tourism, but basically whatever we have done, we have tried to keep nature as it is. And what we do is we promote regional food, basically we are in Maharashtra. So we Okay. promote regional and seasonal food. Like Okay. आजकल क्या होता है, all kids are behind these pizzas and the Fast noodles, food. everything, the fast food, and Yeah. I think most of these dishes like noodles and pizzas and pastas are not even regional to us. It's come from like outside, and it Yeah. has मतलब उसका खुद का ही एक डिसएडवांटेज है. तो जो गेस्ट हमारे फार्म में आते हैं उनको ताजी हवा, ताजा खाना और ताजा मतलब पानी, उसमें पानी में इट्स लाइक ग्राउंड वाटर. We are surrounded by forests, so we have very pure, clean groundwater. So I think the kind of you will see that India के इतने सारे recipes है, इतने सारे, and they are all Authentic designed for the, recipes, yeah. and they are all designed according to the weather, because Yeah. अगर आप गर्मी में आते हो तो आपको वाटरमेलन मिलेगा यहाँ पे, तो आपको वाटरमेलन का जूस मिलेगा. अगर आप बारिश में आते हो तो आपका बहुत सारे बारिश के जो वाइल्ड वेजिटेबल्स आते हैं वो मिलेंगे फार्म में. तो आई थिंक हमारा इंडिया और हमारे जो लोकल रीजनल बहुत सारे फॉरगॉटन वेजिटेबल्स है, तो आप अगर फार्म आओगे तो आपको वो ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा. ऑफ कोर्स जिनको थोड़ा स्पाइसी या थोड़ा चटपटा खाना है उनके लिए भी हम रखते हैं, बिकॉज नॉट ऑल पीपल आर अप फॉर टेस्टिंग द लोकल थिंग्स. बट हाँ, तो ये चीजें आपको मिलेंगी और आपको बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे, बिकॉज आई थिंक हमारे फार्म में अभी फायरफ्लाइज भी दिखते हैं. तो आई थिंक मैंने बचपन में फायरफ्लाइज देखे थे, उसके बाद आई थिंक 20-25 years आई हैव नॉट सीन एनी फायरफ्लाइज. बट जब मैं फार्म आती हूँ तो फायरफ्लाइज दिखते हैं. तो आपको आई थिंक मे बी आपके बचपन में जो आपने किया रहेगा वो आपको फार्म में मिलेगा. Wow. So I think in nutshell, if I say that, from concrete Bombay से अगर आपको एक नेचर के करीब का एक्सपीरियंस लेना है, तो प्लीज काइंडली गो एंड विजिट दिस वन आर द फॉरेस्ट फार्म, जो कि दीपाली
दीपाली ने अपने दिल से, अपने हाथों से और अपने पूरे खून पसीने, कहते हैं ना, अपनी मेहनत से और अपने प्यार से बनाया है. सो आई कैन रिलेट टू दैट, बिकॉज डेफिनेटली मैं सभी फ्रेंड्स को जो बॉम्बे में रहते हैं खासकर उनको जरूर बोलूंगी टू गो एंड हैव दिस एक्सपीरियंस. बट एनीवन हु इज नॉट इवन स्टेइंग एंड they are visiting Bombay, please go and get that experience, because it's very important to connect with nature and have that feeling. And then this is a way we can support people like who are doing some initiative towards it, right? Yeah. But you are doing excellent job. And पक्का मेरा डेस्टिनेशन अगर मैं बॉम्बे में आती हूँ तो मैं तो जरूर आने वाली हूँ. पक्का, definitely. दीपाली, आई एम गोइंग टू बी योर गेस्ट. अच्छा, सो दीपाली, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं. अपनी हेल्थ की हम सभी बहुत चिंता करते हैं, लाइक but no one talk about soil health. So healthy soil is a healthy life. No one, like, we have just totally forgotten this. So आपके हिसाब से healthy soil का आसान मतलब क्या है? मतलब if, because now you have a lot of experience also in this field. So शहर में रहने वाले लोगों को ऐसी कौन सी छोटी सी हैबिट या कोई ऐसा कोई लाइफस्टाइल चेंज करना हो तो जिसमें नेचर और सॉइल दोनों को सपोर्ट मिले, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? So, पहला क्वेश्चन कि हेल्दी सॉइल कैसे देखते हैं, तो अगर आप सॉइल अपने हाथ में लेते हो तो वो ऐसा चाय पत्ती की तरह, मतलब इट शुड बी लाइक ऐसे एकदम रॉक हार्ड नहीं होनी चाहिए, और उसमें आपको कोई लाइफ दिखनी चाहिए, मतलब कोई इंसेक्ट या अर्थवर्म या कोई भी अगर कीड़ा वो सॉइल में रहता है तो दैट इज अ हेल्दी सॉइल. बिकॉज अगर वहां पे लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते तो वो सॉइल डेड हो चुकी है. सो बेसिकली जो सॉइल ढकी है, अगर आप वो पत्ते थोड़े हटा के नीचे से वो जो सॉइल लेते हैं और अगर आपको उसमें दिखते हैं कि एक्टिविटी है इंसेक्ट्स की या माइक, तो वो हेल्दी सॉइल है. दैट इज द सिंपलेस्ट वे सी. बिकॉज जब मैं आई थी मेरे सॉइल्स में ऐसे क्रैक आए थे ना, वहां पे जैसे पानी डालती हूँ और पानी सूख जाता है तो ऐसे क्रैक आता है. बट अभी जब मैं पानी डालती हूँ तो पानी वो एक स्पंज की तरह सोख लेता है. सो दैट इज वन इंडिकेटर. और जो शहरों में रहते हैं उनको जो मैं भी यहाँ पे करती हूँ वो है कंपोस्टिंग. तो कंपोस्टिंग आई थिंक एवरीबडी इफ दे डू एंड दे गिव इट, सो आप जमीन से खाना ले रहे हो, आप जो आपके जो बचा हुआ खाना, मतलब जो वेजिटेबल की पील्स वगैरह है, आप उसको एक प्लास्टिक में टाई करते हो और कचरे वाले के पास दे देते हो, एंड दैट डेवलप्स इनटू अ मीथेन गैस, एंड दैट्स व्हाट गोज इन आवर लैंडफिल इन द सिटीज एंड ऑल. तो आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट कंपोस्टिंग. सो जो सॉइल से आता है इट गोज बैक इनटू द सॉइल. तो अगर ये सब, आई थिंक सब सिटी में एक एक फ्लैट में अगर कंपोस्टिंग करने लगे, so I think there is nothing like that. The small, it's a small steps. Small change, but yes, it takes hardly 5 minutes of your time. Totally agree, because दीपाली मैं खुद यहाँ पे अपना खुद का एंजाइम बनाती हूँ, बिकॉज एंजाइम भी वही होता है कि आप अपने लेमन ऑरेंजेस का सो उसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज मैं बना के रख देती हूँ, बिकॉज इट टेक टाइम टू मैं भूल जाती हूँ, बट वो बनाती हूँ. साथ में कंपोस्ट भी बनाती हूँ अपने अपने गमलों के लिए. बट वो एक सेटिस्फैक्शन होती है कि आप चीजों को वेस्ट नहीं जाने दे रहे हो एंड यू आर मेकिंग यूज ऑफ इट, एंड उसके बाद जब आप देखते हो वो इतनी अच्छी सी चाय पत्ती की तरह खाद बन गई है, वही चीजें गल सड़ कर, तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग भी आती है. उसमें वॉर्म्स भी दिख जाते हैं कई बार, सो दैट इज अ वेरी गुड फीलिंग. सो वेरी नाइस, आई थिंक वेरी गुड एडवाइस. आई थिंक एवरीबडी शुड, जो बॉम्बे में खासकर या मेट्रोज या इवन सिंगापुर के फ्लैट्स में अगर आप रह रहे हो, तो आप फिर भी ऐसे using it, go and give it to your local community जो कर रहे हैं, है ना, आप उनको दे दो, पर कलेक्ट करो, डोंट जस्ट लेट इट गो इन जस्ट. यहाँ पे में बहुत सारे पेड़ ऐसे ही सड़क पे है, तो यू कैन जस्ट पुट इट ऑन एनी ऑफ द ट्रीज. दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस. या कहीं भी जाके थोड़ा सा गड्ढा करके अपना वो सारा कचरा उसमें डाल के मिट्टी से ढक दो, वो अपने आप ही अर्थ उसको कंज्यूम करके वो बना देगी. या वेरी गुड एडवाइस. ओके, सो कभी कभी एक छोटी सी आदत पूरी जिंदगी बदल देती है. सो हमारा जो 8th सेगमेंट है, एक आदत जिसने जिंदगी बदल दी. सो जीरो केमिकल फार्मिंग शुरू करने के बाद ऐसा कौन सी हैबिट या रियलाइजेशन थी जिसे आपने हेल्थ, फैमिली और तीनों को बदल दिया? आपकी अपनी खुद की हेल्थ को भी बदला, आपको कुछ ऐसा चेंजेस जो नजर आए? तो आई थिंक हम बाहर से बहुत खाते थे पहले, बिकॉज वी वर वर्किंग, वी डिडंट हैव टाइम, एंड
ऑफिसेज है तो हम लोग बाहर टीम डिनर्स, टीम लंचेस वगैरह होते थे। हम्म। और बेटे को भी बहुत आदत थी बर्गर पिज्जा वगैरह खाने की, तो एक आदत जो हमने बदली है वो है हम घर पे ही खाते हैं। तो ओके। मेरे फार्म से अभी प्रोडक्शन आना चालू हुआ है, सो मेरे फार्म से तुअर आती है, हल्दी आती है। तो मैं ज्यादातर घर में ही खाना बनाती हूँ, और मैंने देखा है उससे हमारा हेल्थ काफी टचवुड काफी बदल गया, काफी इम्प्रूव हो गया है। हम डॉक्टर के पास एज अ फैमिली बहुत कम जाते हैं। ओके। सो आई थिंक वो एक आदत हमारी बदल गई। और जो मेरी लाइफ में जो मैंने बहुत बड़ा चेंज लाया कि मैं लोग क्या कहेंगे मैं वाले में से थी कि चार लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। बट आई थिंक जब मैं फार्मिंग में गई तब मैंने देखा कि एक झाड़ उसको कोई वाह नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, बट वो फूल देख के मतलब उसको कोई प्रेज नहीं देगा तो भी वो अपना काम कर रहा है कि एक आम देगा या फल क्वाइटली देगा, फूल। साइलेंटली अपना काम कर रहे ही हैं। डजंट नीड अप्रिसिएशन, उसको यस। अप्रिसिएशन नहीं चाहिए उसको। सो आई थिंक लाइफ में मैंने वो इनकॉर्पोरेट किया है कि जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए मैं करूंगी, भले चार लोगों से अप्रिसिएशन ना आए या वॉट एवर इट इज ओके, बट आई विल डू द जॉब विच आई फील इज विच आई फील गिव्स मी हैप्पीनेस। सो आई थिंक वो मैंने बड़ा सा लाइफ लेसन सीखा है कि नाउ being a chartered accountant, people ask me, why did you leave? Why did you go into farming? But I think I'm not bothered about what people now say, because it's all about me and my life and what I want to do. And as long as I'm not doing anything bad, I think it's wonderful for me. Oh, you are doing wonderfully. Actually, you are doing a great service. I'm telling you that. Because very soon they will also realize, those people will realize and connect, जब उनको भी वो health benefits नजर आएंगे. So wow. So these are good changes actually. वही plants से actually हमें ये सीखना तो जरूरी है, जो आपने बताया ना, बहुत ही sensitive चीज है, बहुत ही deep है, कि किस तरह से बस plant या tree जो है वो हमें बस सिर्फ देते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, without any. But like but we humans, we always ask, we also always run for some appreciation, some acceptance or something. But I think do whatever you feel, but be happy and don't bother anyone, don't disturb anyone, and just अपनी जिंदगी जीते रहो, तो जिंदगी बहुत मीनिंगफुल हो जाती है, राइट? प्लांट्स की Right. तरह जीने से. True. वेरी नाइस डर्लिंग. बहुत मजा आ रहा है दीपाली आपके साथ बात करने, लग रहा है कि बस मैं बात करती चली जाऊं, लेकिन टाइम इज क्लिकिंग. सो वी विल डू अ क्विक रैपिड फायर राउंड्स नाउ. चलिए, आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, yes. सो zero chemical farming in one word. Zero chemical farming in one word is, I think, necessity. Necessity. For me is like, I think that's absolutely, it's a need of the hour. Need of that. Yeah. और आपका favorite crop कौन सा है? Your favorite I crop? think मेरा फेवरेट क्रॉप है पाइनएप्पल, बिकॉज उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता है, लाइक एक बार लगा दो एंड लाइक पानी की किल्लत हो या कुछ भी हो, वो पाइनएप्पल बेचारा उग आए जाता है. and it will just like it will just multiply like anything, वैसे. Okay, So I think okay. pineapple is like do nothing farming. Wow, I'm going to definitely incorporate pineapple because it's my favorite, and मैं बहुत सारा ना उसके probiotic drinks बनाती हूँ अपने pineapple wow. का. उसका जो skin भी होता है, because आपका तो natural है, because otherwise मैं उसको baking powder में soak करके, क्योंकि वो बाहर से open होता है ना, so then I soak it and then उसका skin से मैं वो अपने लिए वो कांजी बनाती हूँ pineapple की. Wow. And it turns out so yummy. I'm very very big कबूचा या जो भी आज उसका नाम बहुत है, but हमारे local में उसको कांजी, we call that. It's a good probiotic. So pineapple, I'm definitely going to keep it for sure. Okay, farm का sunrise या मुंबई की night life? I think definitely farm का sunrise. Oh yes, anytime. I run for my sun because मैं यहाँ पे हूँ सिंगापुर में, and I don't. The day I miss sun, morning sun, I feel very as if कोई बहुत बड़ी चीज मिस आउट कर दी है, जैसे होता है ना कि अरे 50% सेल मिस कर दी है, वैसी फीलिंग आती है मुझे. तो सनराइज इज ऑलवेज. खेतों की चाय या सिटी की कॉफी? खेतों की चाय. Okay, are you fond of tea?
या वेरी मच। इनफैक्ट जब मैं खेत में चाय पीती हूँ तो मैं उसमें अदरक और लेमन ग्रास, बिकॉज लेमन ग्रास फ्रेशली मैं वहां पे उगाती हूँ। मैंने एक किचन गार्डन बनाया है, अगर मैं फार्म में होती तो मैं आपको दिखाती। तो वो लेमन ग्रास फिर अदरक सब एक जगह पे ना ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है, तो बस काटो फ्रेश और और चाय में डालो। डालो, तो वाह। उसकी उसकी जो स्वाद आता है अलग ही है। वेल मुझे बहुत मजा आने वाला है आपके फार्म में आने के बाद, क्योंकि मैं तो सिर्फ ग्रीन टी ही पीती हूँ, मतलब इसी तरह से अदरक कभी कुछ तो उसका ही मेरे को अच्छा लगता है। बस गर्म पानी में नींबू और लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया, कभी कभी लेमन ग्रास डाल दिया, कभी एवोकाडो सीड डाल दिया, तो आई जस्ट की सो बहुत, मतलब दिस इज नथिंग लाइक इट, कि अपने बस खेत से तोड़ा, उसका जो फ्लेवर फ्रेश। और उसकी इनहैंस दैट अरोमा इज गोइंग टू बी, आई डोंट नो, वेरी हीलिंग। आई एम इमेजिनिंग दैट। Okay, compost या cow dung. Do you use the cow dung in your? Yeah, I do. I don't have cows yet because I think they are like a family, to have them, they Yes. get very attached to you. Yeah. So, I have a tie-up with my neighbor who has a cow shed. So, but I think definitely compost because it's easier, it's बहुत economical, and nice. it's like very less effort. So, I believe farming में अगर आप full time वहाँ पे नहीं हो तो आपको कम से कम effort रखना चाहिए। बिल्कुल। So compost का कोई tip? Any one tip of your? इट्स वेरी इजी। लाइक जो मेरे फार्म में गेस्ट आते हैं, जो उनके लिए जो वेस्ट जनरेट होता है वेजिटेबल्स का, तो हम वहां पे एक गड्ढा बनाते हैं और वो Okay. गड्ढे में सारे वेजिटेबल्स का जो पील्स और वो सब है वो डाल के उसको कवर करते हैं। सो एंड वी कीप ऑन लेयरिंग इट, Adding that. Okay. एडिंग इट। एंड ऑल्सो वी डू लीफ कंपोस्टिंग, अलग अलग लीव्स को जब भी विंटर्स में जब भी ड्राई होते हैं और गिर जाते हैं, तो वी जस्ट मेक अ वायर मैश, लाइक अ गोल वायर मैश, लाइक अ 6 फीट डायमीटर का, और उसमें Okay. सिर्फ पत्ते भरते जाओ, थोड़ा काउडंग डालो, पत्ते भरो काउडंग, तो ऐसे लेयर लेयर बना के वी मेक कंपोस्ट। एंड वी ऑल्सो हैव वर्मी कंपोस्ट विच इज वेरी इजी। Like there are earthworms, they do their job. You get vermicompost once in 10 days. So composting is definitely easy and economical. Yes. Definitely. और अपना खुद अपने हाथ से बनाया है, तो आप वहीं अपने खेत का कार्बन वहीं का वहीं डाल रहे हो, सो इट्स नॉट, Correct. It's बिकॉज not going. अगेन, हाँ, एक मैंने बहुत अच्छे उनके साथ भी, मैं एक फार्मर है पंजाब के, उनके साथ भी मैं करने वाली हूँ। ही सेज माइनिंग, हम अपने खेतों से माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग मतलब वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग ऑल द कार्बन एंड गिविंग इट अवे, सो आपने जिस तरह से बताया, अपने ही खेत के लीव्स वगैरह को यूज करके जब हम कंपोस्ट बना रहे हैं, देन वी आर नॉट माइनिंग, हम अपने ही वहां का जो न्यूट्रिशन है वहीं डाल Right. देते हैं, है ना? वही डाल। जैसे राइस समझो उगाया है, तो राइस जो ले लिया, बट बाकी जो हस्क वगैरह है उसको कंपोस्ट में, उसी में वहीं पे मल्चिंग है या किसी भी रूप में आप, सो आपका कंपोस्ट का पिट कितना बड़ा होता है? यू हैव अ 3.5 acre लैंड, राइट? राइट। सो जैसे कि पर्माकल्चर अगर आपने उसके बारे में कभी पढ़ा रहेगा तो देयर आर जोन्स। तो ये जो जोन है जहाँ पे मेरा सारा कंपोस्टिंग होता है, वो मैं घर से थोड़ा लंबा बनाती हूँ। सो देयर इज वन कॉर्नर ऑफ माय फार्म विच आई हैव मार्क्ड फॉर कंपोस्ट, जहाँ पे मेरा वर्मी कंपोस्ट पिट भी है। उसके बगल में ये मेरा 6 फीट डायमीटर का एक वायर मैश लगा के, और गड्ढा यू कैन डू एनीथिंग, इट्स माइन इज ओनली 2 फीट डीप। तो उसको लेयरिंग करके उसके ऊपर हम लोग खाली उसको बनाते जाते हैं, और देन वी हार्वेस्ट इट एज Please एंड do व्हेन। make a video on that also. या Mash one, na? डेफिनेटली। Because I've seen quite a lot, and definitely going to implement for myself, because I have this idea कि ये बहुत अच्छा होता है, but pit वाला जो idea है वो भी बहुत अच्छा होता है, but then it's like mix and match. What's going well, just utilize that. That is the main thing. Okay. सो आई थिंक अगर आप पूरी बातचीत हमने अभी कर ली है, तो जो लोग आज लाइव देख रहे हैं दीपाली, उनको अगर समझो उनका भी मन होता है कि हमें भी हेमा की तरह, दीपाली की तरह फार्मिंग करनी, वी वांट टू बी अ फार्म लेडीज एंड फार्म, सो व्हाट एडवाइस, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव? सो आई थिंक अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली जस्ट गो फॉर इट। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द चैलेंजेस, बिकॉज जैसे हम पानी में जब भी तैरना सीखते हैं तो थोड़ा बहुत हाथ पैर चला के या थोड़ा बहुत इधर उधर डूबते हैं या वॉट एवर इट हैपेंस। सो आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रोइंग योर सेल्फ। एंड अभी जब आप फार्मिंग करते हो तो आप यू आर ग्रोइंग इन अ वेज दैट यू डोंट नो। वो इनफैक्ट फार्मिंग आपको ज्यादा हेल्प करेगा। And I think we all need to, I get
back to farming because I think in coming years soil is going to be a big issue because I'm already seeing कि मेरे आजू बाजू में जो land है वो already बंजर बनते जा रहे हैं. People are migrating to village from villages to cities. So and we like people who are already seen everything in the city are going back to the villages. So basically सब घूम फिर के आने वाले तो वही है because वो अपना उसके बिना तो किसी का गाड़ी चलेगी. बिल्कुल खाना तो चाहिए. So Dipali, I'll advise you also that please start workshops for the kids also. अगर आप अपने आसपास के schools के साथ collaborate करके उनको अपने farm में बुला के because वही होता है young minds को एक impressionable minds को अगर हम ये सब चीजें दिखाएं, they get connected because they are going to be our future, right? So they should see the farming in a better light and better, people like you and me. I think we have to. मेरा तो ये मकसद जरूर है और I think you are doing amazing, beautiful job and please अपने farm की जो videos है वो आप उसमें बहुत बहुत जो बताते हैं दिखाते रहिए. And thank you so much for your precious time. I think I absolutely enjoyed and I'm sure बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं और वो जो देखेंगे वो definitely इससे बहुत inspire होंगे. Thank you so much. Thank you, Hima. Thank you for having me. Any parting note? Nothing. Thank you. I mean, like people like you are really needed to, because I think if I had met somebody like you 5-6 years earlier, I would have, thought about, कि क्या क्या करना चाहिए. जैसे आप questions इकट्ठा कर रहे हैं नए beginners के लिए, शायद मैं किसी से मिलती तो शायद मैं थोड़ा बहुत कम गलतियां करती. So thank you, Hema. आपने अब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे करते रहो. And thank you for having me. Thank you. It was my pleasure, Dipali. Okay guys, let's now wrap up. अगर आप भी कोई ऐसे फार्मर हैं जिनकी स्टोरी आपको लगता है कि हमें डिस्कस करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, प्लीज रीच आउट और I will be definitely happy to host you here. And it was lovely pleasure, Dipali. You are doing great job and cheers to your husband also who have encouraged you. Bye. Do share this video guys, please to other platforms to inspire other people. Bye, Dipali. Bye. See you sometime very soon. Sure.